myself first. Okay. So we were discussing syntax directed translation. इसमें क्या है कि in short we call it SDT, and for every grammar we have some non-terminal and some production. So for every terminal we have some attributes which are associated with it, and for every what production we have some semantic rules. तो जब ये ग्रामर पार्स होगी तो साथ साथ हमारे जो उस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमांटिक एक्शन है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, देन these are some points about SDT that we have discussed in the last class. Then parts tree, here you can see y is equal to 3 into x plus z to generate code by listing nodes the parts tree in a given order. So this is parts tree and someone is annotated parts tree. So what is the meaning of annotated parts tree? Means something like y, z, 3, x rules. We can say rules are explained or we can say written over the node. तो अगर से नोट के ऊपर कोई रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि ये रूल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसे कहते हैं एनोटेटेड पार्ट्स ट्री। ओके, यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर एन एट्रीब्यूट मे होल्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग, कांस्टेंट, रिकॉर्ड, मेमोरी लोकेशन, कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स आर इवैल्यूएटेड बाय सिमेंटिक रूल्स दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन रूल। तो ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम इस प्रोटेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो annotated parts tree is a parts tree showing the values of the attributes at each node is called annotated parts tree। तो यहाँ पे देखिए id की वैल्यू y है, कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, id की वैल्यू x है, एंड देन अगेन id की वैल्यू x है। लेट मी यूज annotation this one. So here there is no value of id, but if we write value of these variable id, constant, id, तो क्या हो जाएगा ये annotated parts tree। Okay, so same thing is written here. A value of attributes in nodes of annotated parts tree are either initialized to constant value, जैसा देखा 3 4 वहाँ था, or by the lexical analyzer determined by the semantic rule। The process of computing the attributes value at the node is called annotating or decorating of the parts tree। So computing the attributes value it's called annotating। तो ये 1 मार्क्स का क्विज में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोटेटिंग इन पार्ट्स ट्री। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटिंग द एट्रीब्यूट वैल्यूज एट द नोड ऑफ अ पार्ट्स ट्री। And order of these computation depends upon the dependency graph induced by the semantic rule। Then we have syntax directed definition and translation scheme, इसको हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ये आप देख लीजिएगा। For every grammar with some values, dependency graph। Today we discuss some translation of assignment statement। इस एट्रीब्यूट हमें पता चलता है कि इस एट्रीब्यूट क्या होता है, दैट टेक्स values from its sibling, from its children, not sibling, children। इस एट्रीब्यूट में क्या होगा, वो वैल्यू, वो एट्रीब्यूट जो अपने वैल्यूज किससे लेता हो, चिल्ड्रन से लेता हो। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। एंड एल एट्रीब्यूट क्या होता है, एल एट्रीब्यूट इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है, दैट एट्रीब्यूट दैट टेक्स वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड सिबलिंग। तो अपने पेरेंट से लेता हो और सिबलिंग से लेता हो, अपने चिल्ड्रन से ना लेता हो, इसे कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। So the inherited attribute distributes a type information to the various identifying declaration। तो ये सब डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पे देख लीजिए। Then L attribute definition, something is there, semantic rules, complex tree, सब मैंने आपको बताया था। Constructing syntax tree for expression, this thing, इसे यहाँ पर है। So a minus 4 plus c and this is the grammar। ये आपके पास यहाँ ये गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें सिंटैक्स लिखा हुआ है, एक ग्रामर होगी, एंड दिस 1 2 3 4 5 इज द सिमेंटिक रूल्स। सो p1, p1 मीन्स मेक लीफ id एंट्री a, इट मीन्स मेक लीफ। लेट मी यूज नोटेशन। मेक लीफ मतलब क्या, एक लीफ नोड बनाना है, एक लीफ नोड बनाना है। तो सपोज यहाँ पे क्या है, दिस इज लीफ नोड, एंड किसके लिए बनेगा, id दैट होल्ड द वैल्यू ऑफ ए, एंट्री फॉर ए। जैसे ये फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे फंक्शन ये क्या करेगा, एक नोड बना देगा, और नोड के बाद क्या करेगा, आईडी इसके अंदर रख देगा और एंट्री है।
P2 is equal to make leaf num 4. So P2 is equal to make leaf, so again num, so this one for P2, ये P2 है, this one is P1. Then P3 make node minus P1 P2, so minus P1 which is P3. P4, this is P4 for entry C. अब क्या होगा, जैसे आप करेंगे टॉप डाउन बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, तो अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आए, यहाँ हो जाएगा आपको क्या, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ होगा आई डी, यहाँ होगा सी, हेयर क्या आ जाएगा आपका ए माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। इन दिस वे दीज वैल्यूज कैन बी कंप्यूटेड। इसको हमने कल आपके लास्ट क्लास में बताया भी था, कैसे से कंप्यूट करता हूँ। सो it use underlying production of the grammar to schedule the calls of the function make leaf and make node. Two functions are there, make leaf function and make node function, to construct the syntax tree. Employment of the synthesized attribute nptr. It is a pointer for e and t to keep track of the pointer returned by the function call. So e, this is the grammar, e to even plus t, e to even minus t, e to t, t to the grammar productions. And for every productions we have what, semantic rules. यहाँ पे क्या है, ये productions है, and for this is production, this is semantic rules, and for every non terminal we have some attributes. तो nptr क्या है, एक तरह का पॉइंटर जिसका एट्रीब्यूट है। तो मेक नोड एक नोड बनाएगा, और उस नोड में क्या होगा, इसको ऐसे देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा, e1 एक तो हमारा प्लस होगा, फिर e1 डॉट nptr, तो यहाँ पॉइंटर क्या होगा, जो e1 को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे t को पॉइंट करेगा, इस तरह का पॉइंटर, ठीक है। e1 माइनस टी, तो यहाँ भी क्या होगा, मेक नोड एक नोड बनाएगा जो क्या करेगा, माइनस को पॉइंट करेगा, और E1 और टी, ऐसे ही हमारा ई डॉट टी, यहाँ पे सिंपली वैल्यू आ जाएगी हमारी ई डॉट इनपी क्या टू टी डॉट। एक ये मेक, ये लीफ नोड है, तो एक लीफ नोड बनाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द फॉर्म ए माइनस 3 प्लस 4, ये हमारा एक्सप्रेशन था यहाँ पर, ए माइनस 4 प्लस सी, तो ए माइनस 4 प्लस सी, ए माइनस 4, यहाँ से यहाँ पे आई डी है, यहाँ पे आपका ए माइनस 4 आएगा, ए माइनस 4, जब इसकी वैल्यू इसके अंदर आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सी, यहाँ पे ए माइनस 4 प्लस सी। दिस इज हाउ वी obtain the value of a given expression using semantics rules that are associated with the grammar production. Translation scheme example, a simple translation scheme that converts infix expression to the corresponding postfix. तो अगर से आपको infix to postfix करना है, तो उसके लिए आप एक ग्रामर लिखेंगे, and for every grammar you use some semantic rules. For every production of the grammar you use any semantic rules. So e to tr, r to plus t, printf plus r to epsilon, and t to id, a plus b plus c. तो अगर से ये आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज infix एक्सप्रेशन, तो अगर से इफ यू रन दिस infix एक्सप्रेशन, सिंटैक्स भी बनाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो देख सकते हैं कैसे बनेगा। सो ई टू ई आर, देन टी टू आई डी, आर टू प्लस टी, यहाँ ए हो जाएगा, प्लस टी टू अगेन प्लस टी, एंड देन ए प्लस टी टी आर, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस, यहाँ पे आना चाहिए था, क्लोजिंग आर होना चाहिए, इरेजर, इसका सिंटैक्स कैसे बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए देन टी टू प्रिंटफ प्लस हो जाएगा, R1
प्लस टी, ओके करेक्ट, ये आप ओरिजिनल भेज दीजिए, तो यहाँ पे होगा E2 प्लस टी R1 होगा, अब फिर यहाँ से कुछ चलेगा, देन टी है, तो टी को क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी, ए प्लस बी एंड देन आर वन की वैल्यू, ये आर मतलब आर वन मीन्स व्हाट, इट इज डिफरेंशिएट, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर, इट इज सेम एज आर, तो देन अगेन आर वन को क्या हो जाएगा हमारा प्लस टी आर वन एंड देन यहाँ पे आ जाएगा क्या सी, और यहाँ आ जाएगा एक्साइड, और यहाँ पे ए प्लस सी है, तो अब टॉप टू बॉटम चलेंगे हम यहाँ से, तो ए टू आई डी, तो ए टू आई डी पे आते हैं, यहाँ आई डी को भी ए हो जाएगी, यहाँ ए आ गया, देन आई डी टू टी, तो क्या हो जाएगा प्रिंट आई डी डॉट नेम, तो क्या प्रिंट कर देगा, ये ए प्रिंट कर देगा, देन अब यहाँ पे ई तो कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे आएंगे प्लस, प्लस तो हमारा प्लस ही है, देन नथिंग हैपनिंग, फिर यहाँ पे आए, फिर टी पे गए, बी, बी से टी पे आए, सो बी टी से आई डी है और आई डी से बी है, तो बी एन आई डी टू पी टी, अगेन आई डी टू टी में प्रिंट आई डी डॉट नेम, तो क्या प्रिंट कर देगा ये ए बी प्रिंट किया इसमें, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ प्लस है, प्लस पे क्या आई डी नथिंग, देन टी, टी से अगेन आई डी एंड देन सी, और यहाँ प्लस, सो दिस वन प्लस टी, प्लस टी क्या होगा, जैसे प्लस टी आया यहाँ पर, प्लस टी आया तो क्या दे देगा यहाँ प्रिंट प्लस, क्या प्रिंट कर देगा ये प्लस प्रिंट कर देगा, ठीक है, देन आर वन, देन टी यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ये फाइल ऐसे ही रह जाएगा, टी टू आई टी यहाँ पे सी आएगा, एंड देन जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द ग्रामर फॉर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो अगर से आपका असाइनमेंट एस डी टी असाइनमेंट स्टेटमेंट इज मेनली डील विद एक्सप्रेशन, बस एक्सप्रेशन कैन बी टाइप ऑफ रियल, इंटीजर, एरे, रिकॉर्ड, जो भी हो सकता है, तो जैसे ग्रामर है एस टू आई डी दैट इज इक्वल टू ई टू वन प्लस ई टू वन इंटू ई टू, अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्शन रूल है, फॉर एवरी प्रोडक्शन रूल वी हैव सम सिमेंटिक एक्शन, तो फॉर दिस प्रोडक्शन रूल, फॉर दिस प्रोडक्शन रूल वी हैव दिस सिमेंटिक एक्शन, दिस टू दिस, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इमिट, इमिट की डेफिनेशन क्या है, इमिट इज अ फंक्शन दैट यूज फॉर अपेंडिंग द 3 एड्रेस कोड टू द आउटपुट फाइल, तो करेगा ये 3 एड्रेस कोड का जो आउटपुट आएगा वो उसको, सॉरी अपेंडिंग द 3 एड्रेस कोड टू द आउटपुट फाइल, जो यहाँ पे आपका 3 एड्रेस कोड का आउटपुट है उसको अपेंड कर देगा, एंड देन ई डॉट प्लेस, तो प्लेस की वैल्यू क्या है, ई डॉट प्लेस होल्ड द वैल्यू ऑफ ई, ये वैल्यू ऑफ ई को होल्ड करेगा, पी क्या है, पी रिटर्न द एंट्री ऑफ आई डी डॉट नेम, जो नेम यहाँ पे हम दे रहे हैं उसका जो नेम होगा वो पी के अंदर आएगा, एंड देन न्यू टेम्प, न्यू टेम्प क्या है, इज ए फंक्शन दैट इज यूज टू जनरेट टेम्पोररी वेरिएबल्स, ये टेम्पोररी वेरिएबल्स यूज कर देगा, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है एस डॉट आई डी इक्वल टू ई, तो अगर से ये वाला अगर से हम प्रोडक्शन यूज करते हैं तो कौन सा एक्शन होगा, दिस एक्शन इसका, पी इज इक्वल टू लुक अप आई डी, एंड अगर से पी को नल है तो क्या कर देगा, एरर दे देगा, नल नहीं है तो क्या कर देगा, जो यहाँ पे इसका नियम आया है वो कहाँ पे आ जाएगा, ई डॉट प्लेस में आ जाएगा, ठीक है, तो पी की वैल्यू किस में आ जाएगी, ई डॉट प्लेस में आ जाएगी, इवन प्लस ई में क्या होगा, एक टेम्परेरी वैल्यू क्रिएट करेगा एंड देन इसको क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, इवन मतलब क्या अपेंड करना, ये लिखा हुआ है इन फंक्शन यूज अपेंडिंग 3 एड्रेस को, तो ये क्या है, ई डॉट प्लेस इक्वल टू ई वन डॉट प्लेस प्लस ई टू डॉट प्लेस, ये क्या है, 3 एड्रेस कोड को अपेंड कर देगा, ठीक है, आउटपुट फाइल के अंदर, देन मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है आपका, रेस है हमारा सेम फंक्शन, जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा उसे कर देगा, ठीक है, तो दिस इज द असाइनमेंट ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या हो देखिए, दिस सिंटैक्स, सो अब जैसे ये एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, तब इस केस में क्या होगा, एफ टू आई डी इक्वल टू ई, अब यहाँ पे ई से क्या है हमारा ई वन प्लस ई टू, यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, तो इसको आप इस ग्रामर पे ये एक्शन आप लेंगे, दिस सिंटैक्स ट्री को इस ग्रामर से आप लेंगे, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी, कैसे आएंगी देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है देखिए दिस वन सिस्टमैटिक एक्शन है, अब देखिए ई टू आई डी, प्रोडक्शन रूल क्या है हमारे पास, ई टू आई डी, ई टू आई डी, ई टू आई डी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई डी डॉट नेम इज ए दैट इज पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, दस पी डॉट प्लेस इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सिमेंटिक एक्शन है, तो ई टू आई डी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है
ई टू आई डी, यहाँ पे क्या है ई टू आई डी में दिस रूल, ये रूल है हमारा ई टू आई डी। यहाँ पे क्या है पी इक्वल टू, ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये एक्शन अभी एग्जीक्यूट हो गया, ये एक्शन एग्जीक्यूट हुआ पी इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब क्या है, पी के अंदर क्या आएगा, आईडी का नाम आएगा, आईडी का नाम क्या है ए है, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। देन अगर से पी की निकल नहीं तो क्या करेगा, इमिट ई डॉट प्लेस इक्वल टू पी, तो ई के अंदर क्या आ जाएगा ए वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन ई टू आई डी है, फिर ये एक्शन एग्जीक्यूट होगा। ई टू ई1 इंटू ई2 है तो कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा, दिस वन। तो ई डॉट प्लेस इक्वल टू टी1, क्या देंगे ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प इज न्यू टेम्परेरी वेरिएबल, तो टी1 आ जाएगा। देन इमिट ई डॉट प्लेस इक्वल टू ई1 डॉट प्लेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी1 इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो ई डॉट प्लेस इक्वल टू टी1 एंड टी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए इंटू बी। सिमिलरली अगेन ई टू आई डी है, तो जो जो प्रोडक्शन यूज होगा वैसे वैसे उससे करस्पॉन्डिंग जो आपका एक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले आप आ रहे हैं तो कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे दिस वन, तो जैसे ही आप यहाँ पे आए लेफ्ट से चलते गए यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ आई डी ई टू आई डी, ई टू आई डी, ये वाला सेंटेंस। तो इसे करस्पॉन्डिंग रूल क्या है, तो सिमेट्रिक रूल क्या था हमारे पास, दिस वन, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे चलिए, फिर आप यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे ई टू आई डी का फिर मल्टीप्लीकेशन था तो मल्टीप्लीकेशन वाला, यानी ई1 टू ई1 फ्रॉम ई1, तो ई1 इक्वल टू इंटू ई2, ई1 इज इक्वल टू ई1 इंटू क्या था हमारा प्रोडक्शन, दिस वन था ई डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू डॉट टेन, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ कुछ ई1 लास्ट लाइन लास्ट रो जो है, इन दिस वे वी डू असाइनमेंट, ओके। 10 और वैल्यू क्या आ गई, टी1 इक्वल टू ए इंटू बी, टी2 इक्वल टू सी इंटू डी, टी3 इक्वल टू टी1 प्लस टी2 एंड देन एक्स इक्वल टू टी3, टी3 मीन्स व्हाट ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, ये हमारा एक्सप्रेशन इसको हो गया, ठीक है। अब है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इटरेटिव मतलब क्या, इफ एस टू इफ ई देन s1, s टू इफ ई देन s1 else s2, s टू while e repeat s1, इस तरह का इटरेशन लूप होता है ना, फॉर लूप while लूप। तो इसका कैसे ट्रांसलेशन करना, अभी हम क्या किया ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट। सो s2 इफ e देन s1, तो यहाँ पे क्या है देखिए e डॉट टू, ये दिस इज द ग्रामर, s2 इफ e देन s1, तो वन प्रोडक्शन ग्रामर ऑफ दिस प्रोडक्शन, देन दिस इज द करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शन, e डॉट प्लेस इक्वल टू न्यू टेम्प, e dot true is equal to new label, e dot false equal to s dot next, s1 dot next equal to s dot next. So this is a semantic rule corresponding to first production. Then this is a corresponding rule corresponding to semantic rule corresponding to second production. This is the rule corresponding to, we can say, semantic action. जैसे ही आपको ये अगर से ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करना है, उससे करस्पॉन्डिंग एक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा, ठीक है। वाइल लूप के लिए ये है। अब ये कैसे होगा, अगर से ई की वैल्यू ट्रू है तो कहाँ चला जाए, न्यू लेवल पे चला जाए, एंड अगर से फॉल्स है तो एस डॉट नेक्स्ट कर दे, और एस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या है, एस डॉट नेक्स्ट, एस डॉट कोड इक्वल टू क्या है, ई डॉट कोड, और जनरेट ई डॉट ट्रू एस वन डॉट कोड, ये करके लिखा हुआ है। अगर से ये है तो ये है, कंसिडर द स्टेटमेंट एज इफ ए देन बी, जैसे हमारे ये स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ ए देन बी, यहाँ से क्या होगा, 10 फाइनल आईसीजी क्या होगा देखिए। अब यहाँ पे लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग, यहाँ पे s2 इफ e देन s1, देन अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो e डॉट ट्रू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 11 चलेगा, e डॉट फॉल्स इक्वल टू क्या है, s डॉट नेक्स्ट, s1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट एंड देन s डॉट कोड इक्वल टू a, इफ a देन 11, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ई डॉट ट्रू इज इक्वल टू 11 एंड 11 का जो भी कोड है यहाँ पे, अगर से ट्रू कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। अगर से फॉल्स है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, नेक्स्ट मतलब क्या है, एस डॉट नेक्स्ट है एंड देन एस डॉट कोड इक्वल टू,
तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, इफ ए देन बी, तो फाइनल ICG इंटरमीडिएट कोड जनरेशन बेस्ड ऑन दिस एसडीटी इस क्या हो जाएगा, ए L1B एस डॉट नेक्स्ट, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ये ग्रामर है, क्या है ये बूलियन स्टेटमेंट ऐसे आता है, आईडी रिलेशनल ऑपरेटर, RELOP मतलब क्या रिलेशनल ऑपरेटर आईडी, तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसका क्या होगा, देखिए ये लिखा हुआ सिमेंटिक एक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिस इज द सिमेंटिक एक्शन फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन, फॉर सेकंड प्रोडक्शन, फॉर थर्ड प्रोडक्शन। ये इमिट वगैरह वही है जो पहले हमने बताया था, न्यू टर्म मतलब टेम्पोररी वेरिएबल, तो इस तरह का फंक्शन है, तो बहुत ईजी है। तो कोड ऐसे होगा फॉर A to B और C to D and E to F, ये लिखा हुआ है। तो 100 if A is less than B go to 103, then T1 equal to 1, 104 पे आ गए हम अगर से, तो C is less than D then go to 7, तो 7 पे आ गए then 8। तो इसको कैसे करना है इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, तो if E is less than F then go to 111, 1 गया तो go to 1, ठीक है, then T4 equal to T2, T3, तो यहाँ पे if E is one of the form A to B then code is of the form if A is less than B go to E to Q, go to E dot false। इस तरीके से यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। एक तरह का डिफरेंट वे है ट्रांसलेशन का, इसके लिए यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, बूलियन स्टेटमेंट। सो नाउ SDT हैज़ बीन डन, हम आपको फिनिश कर चुके हैं। सो टिल नाउ नो वन हैज़ ज्वाइन दिस क्लास, सो मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है,